সকাল 10:30 11টা। আমি বারান্দায় দাঁড়িয়ে ওইখানে বসে বসে বুড়ো এবং কর্মনাশা ছুঁড়ো অর্থাৎ রাজা দত্ত আড্ডা দিচ্ছে। শেখর কাকুও রয়েছে ওখানে, এবং রয়েছে আমার বন্ধু তীর্থঙ্কর রায়ের বাবা তুষার রায়। ঠিক আছে ভাই, সুখে সুখে দেখে চলে যাচ্ছিস, সুখে সুখে দেখে চলে যাচ্ছিস। ও কোথায় গেল? আচ্ছা আচ্ছা, দোকান কতদিন খুলছে গো? আমি তো মানে টানা খুলছে, আমাকে কেউ জানায়নি। আমি কালকে সুকুমারদার মুখে শুনলাম। এলআইসির লোক, ওকে। এখন রোজ একটা নারকোলওয়ালা যায় এখান দিয়ে মাইকে, একটা বাচ্চার গলায় এমনভাবে নারকেল বলে, ওই ওই আওয়াজে আমার ঘুম ভেঙে যায় প্রতিদিন। নারকেল নারকেল নারকেল। দাঁড়া, আমাকে এখনো কিছু দেয়নি। চা বিস্কুট দিক, টিফিন দিক, বিস্কুট টিস্কুট পেলে তোকে একটু দেওয়া যাবে তো? আমি তো দেবো তো। থ্যাংক ইউ, বিস্কুটটা খেয়ে আমাকে তুমি ধন্য করেছো। দেখাও, প্লাস্টিক চামচ। আচ্ছা, ওকে, শক্ত চামচও তো। হ্যাঁ ভালো, দেখো এটা মানে রীতিমতো প্লেট ইয়ের সঙ্গে দেওয়া, যেটা মানে কি স্থায়ী ফাইবারের চামচ এটা। এটা তোমার মানে কি বলবো, ইউজ অ্যান্ড থ্রো নয়। তুমি এটা খেয়ে পরে এটা ধুয়ে রাখতে পারো। হ্যাঁ, সেটাই বলছি। মাম, কত করে পড়লো এগুলো? প্রোডাক্ট হিসেবে বেশ ভালো। লক্ষ্মীর ভাণ্ডার তো শুনেছি ভোটের আগে আগে বন্ধ হয়ে যাবে। না না, এবার নাকি 1000 টাকা করে দেবে। 1000 টাকা করে দেবে? বাড়িয়েছে? তাহলে তো ভালো কথা। এরাও আবার ভোটের আগের মানে ইয়ে না তো, যে এই ভোটে যদি জিতি তাহলে 1000 করে দেবো। না না, ওই পরে মাস থেকে দেবে। তাহলে ঠিক আছে। এটা মামাটা বলেছে। আচ্ছা, ডিডিয়া বলেছে। ডিডিয়া যখন বলেছে তাহলে হয়তো হবে। দে ভাই, তুই একটা আমাকে চা দে। মা, এই তো গ্যাঁট হয়ে ঘুমোতে লেগে গেছে গো। কে তোমরা আজকে বারান্দায় টুনু টুনু মুখ করে বসে আছো? আজকে শুক্রবার। ওইখানে দুজন আর এইখানে একজন। এদের রেস্টিং প্লেস হচ্ছে এখন এই বারান্দা। জল এসেছে, অর্থাৎ বেলা 12টার কাছাকাছি সময়। ইউএক্স মানে হচ্ছে ইউজার এক্সপিরিয়েন্স, আর ইউআই হচ্ছে ইউজার ইন্টারফেস।
আর তো আলাদা জিনিস বলছে ইউএক্স ইউআইটা এক নয় হুম ইউএক্সটা হচ্ছে ইউজার এক্সপিরিয়েন্স আর ইউআইটা ইউজার ইন্টারফেস আর টু ইন্ডিপেন্ডেন্ট টার্মস interdependent terms হুম while UI generally deals with the interaction between users and computer systems, softwares and applications. UX deals more generally with the user's overall experience with a brand, product or service. সম্ভবত বেটা টেস্টিং এর আন্ডারে পড়ে সফটওয়্যারের বেটা টেস্টিং হয় যে হ্যাঁ সেটা বোধহয় ইউজার এক্সপিরিয়েন্সের আন্ডারেই পড়ে UI versus UX design. What's the difference? আর একটা বুঝলে হুম। টোটাল তোমার নিল 200 টাকা। সেম জিনিসটা হচ্ছে যদি তুই ইয়ের দিকে যাচ্ছিস বর্ধমান উপার কোনো জায়গায় যাচ্ছিস আসানসোল ফাসানসোল বাসে যাচ্ছিস তোকে নামাবে হচ্ছে শক্তিগড় শক্তিগড়ে গিয়ে স্টপ দেবে ওই ল্যাংচার দোকানগুলোর সামনে হ্যাঁ হ্যাঁ সেটা আমি এসছি, আমি যখন ওই ফিরি তখন তো বাসে ফিরি, হুম। শক্তিগড়ের ওখানেও তোমার থাকে। শক্তিগড়ের ওখানেও থাকে হ্যাঁ শক্তিগড়ের ওখানে আবার খেতেও ভালো, তোমার দামটাও তোমার ঠিকই আছে সবসময়। শক্তিগড়ের ল্যাংচা ভালো না সত্যি কথা বলছি আজকাল আর ভালো লাগে না ল্যাংচা এবং সত্যি কথা আমি তো খেয়েছি অনেকগুলো দোকান, ওখানে তো অনেকগুলো দোকান আছে, এবারে সবারই কোয়ালিটি আলাদা। এইটাই বলবো যে মানে হ্যাবক কিছু যে আগে যেরকম একটা ল্যাংচার ব্যাপার ছিল এখন সেইটা আর নেই। খাচ্ছে খাক না বেচারা আমাকে চা দিস বিকেলে করে খোলো বুঝলে, সবাই রুটি ফুটি চলে যাচ্ছে। থ্যাংক ইউ তাই না সুগদা বলো? রুটি টুটি বলে গেল না বলো একটু আগে। রুটি হলে সুবিধাই হয় রাতের সুগদা ঘুঘু পাখি চাবিটা নিয়ে নেন। ঘুঘু পাখি ঘুরছে রবিবার 11ই ফেব্রুয়ারি দুপুরবেলা এখন অ্যারাউন্ড 3:30 কাছাকাছি আমার ঘরের যে বাল্বটা নষ্ট হয়ে গেছিলো কেটে গিয়েছিল তো তার জন্য আমি একটা মানে বাল্ব অর্ডার দিয়েছিলাম বাল্ব তার সাথে আরও 2-4টে জিনিস টুকিটাকি ইনস্টামার্ট দিয়ে অর্ডার দিয়েছিলাম তো জিনিসগুলো যে ডেলিভারি দিতে এসেছিলো নিচে আমার কাকিমাকে সে এসে জিজ্ঞেস করেছে ঠিকই ঢুকেছে ঠিকই চিনে ঢুকেছে এবং নিচে কাকিমা তাকে বলেছে না এটা 28 নাম্বার নয় তো নতুন করে কিছু বলার নেই মানে সারা জীবন তো নায়ের পৃথিবীতে কাটিয়েছে তো কারুর একটু ভালো একটু পজিটিভিটি তো সহ্য করতে পারবে না এটা জানা কথা বাট পজিটিভ থিঙ্কিংয়ের জোরই আলাদা এবং কিছুদিন বাদেও বুঝতে পারবে যে সত্যি এটা 28 নম্বর নয় ভগবান যেন সেই দিনটা ওকে দেখানোর শক্তিটুকু আমাকে দেয় যেটা যেন 28 নম্বর আর মানে না থাকে 28 নম্বর
এর অনেকেই এই 28 নম্বরের খেয়েছে পড়েছে, তারপরে 28 নম্বরকে কাঁচকলা দেখি, যেটা থামস আপ নয়। তো তার মধ্যে ও একজন, মানে ওকে স্পেশালি আমি তো ভাতার খাগি এমনি এমনি বলে রাখি না, তো বা গালিগালাজটাও এমনি করি না। এনিহাও ঘর অন্ধকার কাটানোর জন্যই আলোর ব্যবস্থা করা। আর ওর মনের অন্ধকার কীভাবে দূর হবে আমি জানি না। মানে আমার মানে প্রভুর কাছে প্রার্থনা যেন, মানে কি বলবো, এটা যদি একটা পরিবার, যদি একটা কোম্পানির মতো হতো, মানে ও হচ্ছে গিয়ে সে কোম্পানির মানে সবচেয়ে লো প্রোডাক্টিভিটি এবং লো মোটিভেটেড একটি নেগেটিভ মাল, সি ক্যাটাগরিতে পড়ে। তো এই ধরনের লোককে র্যান্ডাম ফায়ার করার রুল আছে কোম্পানি থেকে। তো আমি এটা তো পরিবার, আমি এখনও পরিবার কেন বলছি, আমার সত্যি আমারই ভুল। মানে ওকে আমার মানে যদি ক্ষমতা থাকতো ওকে ফায়ার করতাম, সেটাই। এটা হচ্ছে একটা বাল্ব, এটাকে বলে টি বাল্ব। এটা বিশেষ ধরনের বাল্ব, নর্মাল বাল্বের থেকে একটু আলাদা। এলইডির একটা স্ট্রিপ থাকে এটার ভেতর। ওয়াটেজ একই, 9 ওয়াট, 10 ওয়াটও নয়, অ্যাকচুয়ালি 9 ওয়াটের বাল্ব। যে টাংস্টেন বাল্বটা এখানে লাগানো থাকতো তার বরং ওয়াটেজ বেশি ছিল, মানে সেটা ছিল মোটামুটি 40 ওয়াট, তার জায়গায় এটার ওয়াটেজ হচ্ছে 9 ওয়াট, কিন্তু আলো হয় ওটার 4 গুণ। তো কীরকম আলো হয় আমরা একটু জ্বালিয়ে দেখে নেব। টি বাল্ব ফিলিপসের, বাহ চমৎকার আলো, জাস্ট লুকিং লাইক এ ওয়াও। মনে হচ্ছে যেন একটা ছোটো টিউবলাইট জ্বালানো হয়েছে। যাই হোক, একটু বিশ্রাম নেব, বিকেলে আমার এক বন্ধুর আসার কথা আছে। हम सोचे भैया कि हम धीरे धीरे शोज लाएंगे। अगर ऐसा प्लान है तो आगे बढ़िए, धीरे धीरे करिए, म्यूजिशियंस आपको मिल जाएंगे। आप नहीं रहिएगा। मैं शायद आपसे उस तरह से नहीं, एक चीज़ हो सकता है, अगर आप ऐसे कुछ प्लान करो, मान के चलो कि आप शोज़ ला रहे हो, शोज़ कर रहे हो, आप गाना गा रहे हो, आप हिंदी में गा रहे हो, मैं बांग्ला 1-2 गा रहा हूँ साथ में, ऐसा अगर आप करोगे वैसा ही वही बोल रहा हाँ तो हो सकता है। था। हाँ मैं वैसा ही बोल रहा था। और अगर शुरू में मुझे पैसे नहीं भी मिलते तो मैं आपको पे करूँगा, आप उसके लिए भी निश्चिंत रहिए। पेमेंट का उतना भी वो नहीं है। यहाँ पे ना नहीं, आप निश्चिंत रहना है, आपको मैं फ्री में तो ना, आपका मैं बहुत यूज़ किया हूँ, ऐसा नहीं है तो 300-400 रुपये में सीखा हूँ आपसे, मेरे को पता है ना भैया, ऐसा कोई नहीं है। लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ, मेरा था उस समय। अभी मैं शिफ्टिंग उफ्टिंग कर लेता हूँ, लेकिन वही कि गाना वाना नहीं बजाता हूँ, प्रैक्टिस नहीं हो पाता। कॉर्ड शिफ्टिंग ये सब मैं किया। ओके, आपका गिटार आपके पास है? हाँ यहाँ पे लाए हो? नहीं लाया था, लेके चला गया। एक्शन थोड़ा सा उसका खराब हो गया, वो आपको फिर से फिर हम जाके उसको शॉर्ट लेग में बनाए थे, समझे भैया। हाँ और हम ना एक नौकरी पकड़े थे शॉर्ट लेग। हाँ बोले थे, क्या हुआ उसका? हमको फिर बोला कि ऐसे ऐसे इंटरव्यू दिए, रख लिया। हाँ। असल 4 दिन काम करा के बोलता है कि नहीं तुम अगो। हाँ कैसा था? सेल्स था, मार्केटिंग था, अरे क्या भैया, था? पता है क्या करना पड़ेगा, वो ना थोड़ा सा डाटा एंट्री जैसा था वो ओके, डाटा एंट्री फ्रॉड। पता है क्या फ्रॉड था ना। हाँ, अभी डाटा एंट्री फ्रॉड का एक मतलब नया ये चल रहा है। मेरे एक दोस्त नहीं हाँ महिला मित्र, तो उनको रिसेंटली वो भी जॉब के तलाश में घूम रहे थे, तो उनको फ़ोन किया एक कंपनी से, डाटा एंट्री है ये, हाँ हाँ आपको आप अगर ठीक से कर पाए, हाँ, आपका हाँ, पहले स्क्रीनिंग होगा, ये होगा, हाँ, वो हाँ, होगा, फॉर्म फिलअप होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और डाटा एंट्री, हाँ ये 3 टाइप का काम है। हाँ
सब बोल के तो ये किया, उससे डॉक्यूमेंट्स लिए, CV लिए, ये सब लिए। हाँ सेम 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 वही वही। फिर उसको ट्रेनिंग देने के नाम पे हाँ मेरा वही हुआ। आपका कुछ कटा क्या, चूतिया काटा उन्होंने? 3 दिन खटा तो वहाँ पे लिंक्डइन से चला हमको नहीं, चूतिया काटा मतलब आपसे पैसे में लिए, कुछ बच गए। 3 दिन में 4 दिन गया ना यहाँ से शॉर्ट ले वो आपका जेब से गया। लाकीली आपका ये वाला हिस्सा नहीं आया कि ठीक है ज्वाइनिंग हो जाएगा, लेकिन आपको एक रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा इतना रुपए वाला। वो दौर नहीं आया लाकीली आपका। और एक तरह का चल रहा है अभी, आपको एक कॉन्ट्रैक्ट के ज़रिए नौकरी दिया जाएगा और वहाँ पे बोला जाएगा कि मान के चलिए डाटा एंट्री ही है, मान के चलिए आपको बोला जाएगा कि कम से कम 60% काम सही होना चाहिए आपका काम में। अगर उससे कम प्रतिशत काम में गड़बड़ी मिली तो आपको वो लोग मतलब आपसे वो हर्जाना लेंगे। 50,000 की नौकरी थमा के आपसे फिर फाइन के नाम पे 4-5 लाख रुपए ऐंठ लेते। नहीं वैसा तो नहीं हुआ भैया, लेकिन जैसा भी हुआ उसमें बहुत दुख हुआ हमको। सारा भैया चूतिया काटा। ऐसा मेरे साथ भी हुआ है, हो चुका है। अभी एक हम बात मेरे दोस्त ने मुझे एक कंपनी में घुसाया था। उस कंपनी में मुझे एक सॉफ्टवेयर बेचना पड़ता था, सॉफ्टवेयर का डेमो देना पड़ता था। तो इसका नाम था एडुमेट प्लस, वो ऐप का नाम था। नीट का एग्ज़ाम जो लोग बच्चे लोग देते हैं ना डॉक्टरी के लिए, और जो जॉइंट एंट्रेंस, उसका कोर्स था, उसका वो कोर्स था। हाँ। तो वो ऐप के ज़रिए आप एग्ज़ाम दे मतलब एग्ज़ाम में बैठ अभी मतलब आपका पूरा एग्ज़ाम जैसा होता है नीट का जॉइंट एंट्रेंस का, वैसा ही पूरा चैप्टर वाइज या फिर पेपर जैसे होता है। वीकली टेस्ट होते हैं उसमें, पेपर वाइज आप टेस्ट दे सकते हो, MCQ पैटर्न। और टोटल 10,000 सवालों का वो एक अलग ही डेटाबेस रखता था। हाँ समझ गया, वो भी चाहिए। और उसका लीडर बोर्ड होता था, मतलब आप दे रहे हो, जैसे आप एडुमेट प्लस अपने सब्सक्रिप्शन लिया है, आप एग्ज़ाम दे रहे हो और भी बच्चे दे रहे हैं पूरे इंडिया से, तो एक लीडर बोर्ड बन जाता। मतलब मान के चलिए एक दूसरा नीट, वहाँ का लीडर बोर्ड का रैंक देख के आपको पता चलेगा ये मेरा इतना एक्सपेक्टेड रैंक होगा। हाँ हो सकता है। एक वो सिमुलेशन टाइप का वो लोग बना के छोड़े थे। तो मुझको जो दिया गया था, जो मैथ्स के कोचिंग वाले हैं ना आसपास, जितने भी मैथ्स फिजिक्स और बायो के जितने भी कोचिंग सेंटर्स हैं, तो मतलब नाम वाले नहीं, जैसे मान के चलिए आप एक कोलकाता का बहुत ही फेमस कोचिंग सेंटर का नाम है पाथफाइंडर, और एक दूसरा एक है उसका नाम है आकाश। अच्छा ठीक है, आकाश IAS का भी ट्रेनिंग देता था। हाँ। तो पाथफाइंडर और आकाश के पाथफाइंडर तो बाईजूस ने टेक ओवर कर लिया था, अभी बाईजूस घुस गया है। वो फ़ोन कॉल्स रिलीज़ होने के बाद बाईजूस का वो सेल्स वाले लोग डरा रहे थे मम्मी पापा लोगों को कि हमारे कोर्स अगर नहीं किया तो आपका बेटे का झींगा लाला नहीं हो पाएगा। है दोस्त लोग कर रहा है उसमें काम। तो आकाश और पाथफाइंडर एक वो अपना खुद का टेस्टिंग सिस्टम यूज़ करते हैं। सभी बच्चे ऐसे नहीं है जो आकाश या पाथफाइंडर का मंथली भर सके। जी तो उन लोगों के लिए ये था एडुमेट प्लस। वो लोकल जितना भी मैथ्स का, तो आपके उसमें काम कर रहे थे? मुझे जाना पड़ता था वो सब सेंटर्स में, वो कोचिंग सेंटर्स में जाके। कब बात है? ये है कोरोना का बीच का टाइम, लाइक लॉकडाउन हुआ था, पार्शियली लॉकडाउन हटाया गया। अच्छा। बहुत ही कम गाड़ियाँ चलती थी, बहुत ही कम बसेस चलते थे। आप बोले थे सर कुछ प्रॉब्लम हुआ था कोविड के टाइम? कुछ हुआ? कोविड के टाइम में तो मैं खुद इफेक्ट हो गया? इफेक्टेड हो गया था, पड़ा था, यहाँ पे ही पड़ा था। मुझे लगा चलो एक वो स्वैब टेस्ट करने वाला आया, आके मेरा स्वैब टेस्ट करके ले गया। फिर 3 दिन बाद रिपोर्ट दिया, बोला पॉजिटिव है। बोला चलो ठीक है, टिकट कंफर्म है,
ऐ ऊपर वाले मैं आ रहा हूँ, ऐसा कोई नहीं, ऐसे मतलब मुझे वही लगा कि अभी तो गया मैं काम से। आप थोड़ा ध्यान रखिए। तो हम वही बात भैया, मान लीजिए अभी मान लीजिए हमको करना पड़ा तो मैं पे करके करूँगा शोज, क्योंकि मैं गाने बना रहा हूँ। पे करके शोज करना बेटे ये कोई जरूरी थोड़ी ना भैया, हमको अभी थोड़ी ना कोई पैसा देगा। आप सुनो, एक काम करो, जो आप गाना बना रहे हो ना, हाँ, वो गानों को तुम अपना एक YouTube चैनल बनाओ, बना हुआ जैसे है मेरा चैनल। बना हुआ है, हाँ। हाँ, उसी में उसको डालो, चैनल का प्रमोशन करो, ठीक है। और क्या क्या जॉब राहगीर का चैनल हाँ, देखा हाँ, है देखा, तुमने? हाँ। राहगीर जिस मॉडल को फॉलो कर रहा है उसके आसपास रहो, राहगीर का कॉपी मत करो, नहीं, बट नहीं, नहीं, अपना एक अलग ही ये करो। जी। जैसे तुम्हारा वो जो छठ वाला गाना था, वो हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने शेयर भी किए हाँ, हाँ भैया जान। डिफरेंट ये पे। तो उसी तरह पे देखो, आज आप हो बिहार से, मैं बिहार था, हाँ। झारखंड था। तो झारखंड बिहार में चलने वाली हाँ, हाँ, एक बहुत ही पॉपुलर लैंग्वेज है भोजपुरी। राजा भोज का नगर था भोज, हाँ, राजा भोज, गंगू तेली, राजा भोज की एक बेटी थी, वो भी जादू का बहुत बड़ा परफॉर्मर था। अच्छा, राजा भोज बहुत तगड़े मैजिशियन थे। अच्छा भैया। ये आपको मत पता है, कहानी पता है राजा भोज की कहानी? राजा भोज और गंगू तेली की कहानी, ये एक बहुत ही मज़ेदार कहानी है। ये कहानी आपको मिलेगी बीताल 25 नाम की किताब के अंदर, जिसमें राजा विक्रमादित्य एक मरा हुआ बेताल को अपने कंधे पे डाल के, हाँ, वो जानते हैं। हाँ, उसी में ये कहानी है। क्वेश्चन पूछता है बेताल, हाँ, क्वेश्चन पूछेगा ऐसे। तो उसमें राजा भोज और गंगू तेली की कहानी है। राजा भोज बहुत बड़े जादूगर थे, उनकी एक बेटी थी, उनकी बेटी के नाम पे ही उनका मतलब वो किंगडम का नाम था, बेटी के नाम पे ही। बेटी का नाम अभी अरे मुझे तो भैया खाली यूट्यूब में तो अभी थोड़ी ना यूट्यूब कुछ होगा, तो कंटेंट बना रहा हूँ। आपको देखो एक बात बता रहा हूँ मैं। जैसे अभी ये वाला रिलीज करूँगा, देखिए आप सुनिए इसको। ये मुझे भेजा था ना आपने? नहीं ये नहीं, वो आपको एक कवर सुनाया था, वो कोई बनाए थे। यही शायद। आप सुनिए तो पहले। बढ़िया। अरे हम्म, ऑनरवा फोन कर दिया। बात हाँ अंकल, না আমি একটু বডি 10 মাধ্যমিক হবে না কেন? দূর। মাধ্যমিক হবে না মানে তোর হবে না, এদের জন্য বলছিস না? মাধ্যমিক পরীক্ষাই বন্ধ করে দেবে?
তাহলে কি এবার একেবারে সবাইকে মায়ের পেট থেকে পড়লেই MA পাস সার্টিফিকেট দিয়ে দেবে? কি আনন্দ, কি আনন্দ! লেখাপড়া করে কি লাভ? রাজাই কইছে চুদির ভাই, আনন্দের আর সীমা নাই। চলো ঠিক আছে। আমি মাধ্যমিক দিতে গেছি গল্ফা গার্লসে না মা, আবার গল্ফা গার্লসে ভর্তি হয়েছি 11-12 হ্যালো, ও মামা আসো না কেন গো? গুড মর্নিং, চা খাচ্ছি। আজকে হচ্ছে হাগ ডে, তো যার যার সকালে হাগা ক্লিয়ার হয়নি তারা বাথরুমে একটু কষে করতে পারো, হাগা হয়ে যাবে।